Good morning. Welcome to the English class, grade 1. I'm Ma'am Atya, your English teacher. So I hope so that you all are ready for your English class. मैंने देखा था व्हाट्सएप में कि जो आपका अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm good. Okay, grade 1. Let's start our today's lecture. Today we are going to start some grammar work. We have done the irregular verbs in our previous lesson. Today we are going to start the regular verbs, right? So today you just have to open your English notebooks. You have to prepare your page. Mention today's date. Today is 5th of the April and the year is 2021. Then mention classwork in middle and then mention today's day. Today is Monday, right? अब सबकी notebooks open है? Show me your notebook. Good. The work should be very neat and clean, right? Okay, now draw your margin line and you have to make 3 columns for your regular verbs. The first one for the base form, the second for the past, and the third for the past participle, right? There will be 3 columns on your notebook. Now you can see the complete page. You have to make 3 columns like this, okay? And there will be 10 regular verbs. There will be 10 words, okay? Prepare your page like this. Then I will zoom in. What? 5. What now? So, have you done grade 1? Have you prepared your page? Yes, ma'am. So, you all are ready? Should I start? Should I start grade 1? You all are ready? Ma'am, no. Why no? Be quick. Ma'am, 1 minute. Okay, I'm waiting, but be quick. बोलो yes. Then mention classwork and then mention today's day. Then moving to the next line, mention grammar, and then on third line mention regular verbs. Okay. After that, make 3 columns. And then you have to mention base form in the first column, past form in the second, and the past participle in the third column, right? Let's start. Mention serial number 1. Right, ma'am. Right, ma'am. Right, ma'am. Okay, few of the students have joined me right now. For those, I'm repeating that today we are going to start the regular verbs. So prepare your work page, your notebook, and start working. Okay, what are the regular verbs grade 1? आपने irregular verbs किए थे, उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था? Irregular verbs में हर जो वर्ब की फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है? जैसे कि हमारे पास एक irregular verb था go and its past form was went and its past participle form was gone. Go, went, gone. But in the regular verbs, in this regular form of verb, जो आपके पास past और past participle इसके जो वर्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी, उसमें आपके पास उस वर्ड के साथ जो एंडिंग होगी उस वर्ड की वो ed के साथ होगी, और ये
इस जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं इसमें जो बेस फॉर्म होती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। उसी वर्ड को आप पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी यूज करते हैं और पास्ट फॉर्म में भी आप उसकी एंडिंग ईडी के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वर्ड है जंप, तो इसकी सेकंड मीन्स की पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जंप होगी। जंप जंप, बेस फॉर्म इज जंप, past form is jumped and the third past participle form is jumped. Okay, तो ये हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं कि इसमें हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेम होती है, सेम सीक्वेंस्ड होती है। इसमें ये इरेगुलर नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास इरेगुलर में जैसे कि गो के बाद वेंट और फिर गॉन होता है, तो यहाँ रेगुलर में हमारे पास सेम वर्ब सेम जो इसका पैटर्न है वो दोनों फॉर्म्स में अप्लाई होगा। एंडिंग है वो हमारे पास ईडी। ठीक है, समझ आ गई है रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? पहले मुझे बताएं जरा आप। एंड पे क्या लगाते हैं? ईडी के साथ वर्ब की एंडिंग होती है। यस, और उसकी पास्ट फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म सेम होती है, राइट? व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, उसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होती है, राइट? समझ आई आपको? ग्रेड 1 आपको समझ आ रही है? Yes, ma'am. So you have to respond me now. If you want to ask me something, you can ask now. Quiet class. Okay, the second word is talk. जी, पास्ट फॉर्म क्या होगी ग्रेड 1? Grade 1. Tell me the past form of talk. Good grammar. Speak up, grade 1. Speak up. What is past Excuse form me, of talk? ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Shahir. Excuse me, ma'am. Yes, Shahir bin Amjad. Excuse me, ma'am. जी शहीर बोले। Okay, the first form is talk and the third form is talk. Okay, talk, talk, talk. Then the third one is walk. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. I can leave. जो भी लीव करेगा ना होगा। ओके ग्रेड 1, अब आप खामोशी से और कंसंट्रेशन से अपना काम करेंगे पहले, ठीक है? उसके बाद हम कोई ऐसी क्यूरी हुई तो उसको सॉल्व करेंगे और अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आई विल आंसर इट। ओके, द थर्ड वर्ड इज वॉक, राइट? इट्स पास्ट फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज वॉक्ड and the past participle is also walked. Walk, walked, walked. Then number 4, ask. Its past and the past participle form is asked, right? Ask के बाद आपने इस word की ending ed के साथ करनी है, then it will be your regular form of verb and you will get its past and past participle. Then number 5, kill. The past and past participle form of kill is killed, right? Kill, killed, killed. Number 6, start. Its past and past participle form is started. So start, started, started. You can see that its ending is with ed, right? तो ये बहुत easy है।
रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में मेंशन होता है रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स और उसके नीचे आपको 5 वर्ड्स दिए होंगे या 2 हो सकते हैं या जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए उस टाइम कि रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स ने टीचर ने क्या बताया था। आप ग्रेड 1 है तो आपके लिए सबसे इजी जो है एक यही होगा, आपको याद रखने के लिए सबसे इजी चीज यही होगी कि आप ये याद रखेंगे कि जो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं उन जो वर्ड होता है उसके एंड में ईडी लगाने से आपके पास उस वर्ड का या उस वर्ब का पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब आपको मिल जाता है। तो आपने सिंपली उस वर्ड को लिखना होगा दोनों कॉलम्स में, पास्ट वाले में, पास्ट पार्टिसिपल वाले में भी, और उसके साथ आपने ईडी लगाना होगा तो आपके पास उसका पास्ट फॉर्म भी आ जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल भी आ जाएगा। ये सबसे इजी है, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये बहुत इजी है, ठीक है, और आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं इस तरह से। सो नंबर 7, ट्रैवल। सो द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ट्रैवल इज ट्रैवल्ड, राइट? ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। अभी आप समझ भी लें तो काफी है, क्योंकि मैं ये वर्कशीट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी तो आप वहां से देख के आराम से इसको सॉल्व कर लेना विद स्पेलिंग्स मिस्टेक्स। आप उस सब अपने काम को चेक कर लेना और आराम से अपना काम नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। बट नाउ अभी आप इस चीज को समझें और मेरे साथ साथ इस चीज को आप रिपीट भी करें खुद से। नंबर 8, विजिट एंड इट्स पास्ट फॉर्म इज विजिटेड एंड पास्ट पार्टिसिपल इज विजिटेड। विजिट, visited, visited. Okay, number 9, used. Yes, what is the past and past participle of use? Use, used, used. The last one, number 10, study. Yes, the past form and the past participle form of study is studied, right? Studied. Now I'm going to zoom out the worksheet. You can see the complete worksheet. ये आपकी worksheet है, ये आपको WhatsApp ग्रुप में भी अभी रिसीव हो जाएगी और वहां पे आपने इसको ओपन करके अपना नीट एंड क्लीन क्लास वर्क करना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स के लिए अपनी नोटबुक से ही मिल जाए रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स और आपको कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। आज की डेट भी आपने डालनी होगी और अपना काम नीट एंड क्लीन करना है। और लाइंस कुछ बच्चे विदाउट स्केल लगाते थे क्लास में, ठीक है, जिनको फिर मैंने स्केल का बताया था कि स्केल से लाइंस कैसे लगाते हैं और वो आपने सीखा था प्रॉपर क्लास में। तो आपने स्केल से ही लाइंस लगानी है। कॉलम्स जो भी बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस रख के, जैसे आप वर्ड सेंटेंस और वर्ड्स मीनिंग के लिए बनाया करते थे, आपको अच्छी तरह से याद है, तो आपने इक्वल डिस्टेंस रख के अपने कॉलम्स बनाने होंगे और उसमें नीट एंड क्लीन काम करना होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप कॉलम्स बनाते हैं तो उसमें जो आप वर्ड्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं कि जो आपने लाइन लगाई होती है उसके साथ से वर्ड स्टार्ट कर देते हैं, तो वो इक्वल डिस्टेंस रहता है हर वर्ड में और वो ऐसे इरेगुलर पैटर्न पे नहीं होते, तो वो काम जो है वो नीट लुक देता है, ठीक है। इन चीजों को आपने याद रखना है, अगर घर पे हैं तो भूल नहीं जाना। Yes, grade 1. Now we are going to solve simple present tense. Okay, first you have to understand कि simple present tense क्या होते हैं, ठीक है। आपके पास आज का दिन भी है, कल का भी है, तो आप आराम से ये काम करते रहिएगा। Yes, grade 1. So this is the worksheet of simple present tense.
मैम ये कौन सा चैप्टर है? Yes, grade 1. So we are going to solve simple present tense. ये चैप्टर नहीं है, ये भी आपका ग्रामर वर्क ही है. अभी हमने irregular verbs किए हैं और अभी हम simple present tense करेंगे, ठीक है? So ये भी आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर ही करेंगे. इसके लिए भी आपको अपना पेज ही प्रिपेयर करना है. जी मैम ये वर्कशीट भी भेजेगी इसकी? हाँ जी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको मिल जाएगी. आप आराम से अपना काम कर लेना, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिएगा. पेपर कब है मैम? पेपर्स कब है? बस आप इस मंथ अपनी तैयारी रखें, ठीक है? उसकी जल्दी फोन ओके ग्रेड 1, अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं. अब आप समझे पहले, ठीक है? और मैं आपसे उसके बाद क्वेश्चंस करूंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं. जो मैं बताऊंगी वो आपने मुझे फिर दोबारा से बताना भी होगा, ठीक है? सो लिसन टू मी क्लियरली, ठीक है? और कॉन्शियस होकर a verb in the present tense tells you that an action is happening now or it is done as a habit, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? बेटा खामोशी से मेरी बात सुने आप. जी ग्रेड 1, पहले आप मुझे सुनेंगे, ठीक है? समझेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं. आप पहले समझ लें कि ये क्या होते हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चंस करने हैं और जो मैं क्वेश्चंस करूंगी उनका आंसर भी आपने मुझे करना है, ठीक है? बहुत इजी है, ये कोई इतना ज्यादा काम नहीं है. ये देख लें, छोटी सी वर्कशीट है इस चीज की. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक जो वर्ब यूज हो रहा होता है, वर्ब बेसिकली क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्शन को शो करता है वर्ब, ठीक है? जैसे किसी काम का करना, होना, आपका किसी चीज को कोई पसंद करना, आपकी फीलिंग्स, वो सारी चीजें जो है वो वर्ब एक्सप्लेन कर रहा होता है. तो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी टेंस में आप जब वर्ब यूज करते हैं तो वो वर्ब क्या शो कर रहा होता है? वो वर्ब ये शो करता है कि कोई काम अभी हो रहा है या ये डेली रूटीन में ये काम होता रहता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले ही हम आपस में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं. दैट व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एक्शंस कैसे हो रही होती हैं, किस किस्म का एक्शन हो रहा होता है, कौन सी ऐसी हैबिट्स होती हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो डेली रूटीन में हो रही होती है, और वो जो वर्ब यूज हो रहा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो उन चीजों को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है? जैसे कि आप अगर मुझे कहें कि टीचर आई एम लिविंग इन माई होम, or you can say that I live in Prime Minister Colony or in Basti or anywhere like Gulistan, Gulbarg, you can say. तो आप जब मुझे ये बता रहे हैं that I live there, so it is your habit. Like ये काम आप रोज करते हो, आप रोज अपने घर जाते हो, रोज स्कूल आते हो. तो अगर आप मुझे ये कहते हो कि I study in सर सैयद कैंपस 8, तो आप ये काम रोज कर रहे हो, ठीक है? ये आपकी हैबिट है. आप घर से डेली स्कूल के लिए आते हो और स्कूल से डेली आप घर जाते हो. तो ये जो एक आपकी हैबिट है, ये भी आपकी सिंपल, उसमें जो आपका लाइक स्टडी करना है या आपका रहना है, दैट यू लिव इन योर होम. तो ये जो एक्शन है, ये जो लिव है, ये ऐसा वर्ब है जो कि आपके एक्शन को शो कर रहा है. तो ये चीज जो है ये आपके टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रही है, ठीक है? ग्रेड 1 मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ और बहुत सिंप्लीफाई करके, और बिल्कुल आपकी डेली लाइफ रूटीन की जो एग्जांपल्स है मैं आपको वो दे रही हूँ. तो आपको बहुत इजी लगेगा ये, और ये है भी बहुत इजी. इसमें जस्ट आपने क्या करना होगा कि आपको मैंने बॉक्स दिया है, ठीक है? देखें, इसमें आपको 5 वर्ड्स नजर आ रहे हैं जिनमें फिट, लिव, लाइक, गोज, रीड्स, जस्ट 5 वर्ड्स हैं. और नीचे जस्ट आपको 5 एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने, राइट? अब करना ये है आपने कि आपको ब्लैंक्स दी हुई है मैंने, ठीक है?
इन ब्लैंक्स में आपने जो वर्ड वहां पे फिट कर रहा है, देखें आपको कुछ वर्ड नजर आ रहे हैं और उनके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, वो अंडरलाइन हुए हुए हैं वर्ड्स। अभी आपको नजर आ रहा है कि वो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए हैं, उनके नीचे लाइन लगी हुई है। तो ये जब आप एग्जाम्स में आएंगे तो तब आपके पास ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, यहाँ पे वर्ड्स नहीं लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ब्लैंक्स होंगी और उन ब्लैंक्स में आपने ऊपर जो बार है उसमें से वर्ड्स देख के आपने वहां पे मेंशन करने होंगे, ठीक है। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। अब ये आपको मैंने 5 वर्ब्स दिए हैं, एक्शन वर्ब्स हैं ये। इन वर्ब्स में, इन वर्ड्स में यही शोर हो रहा है कि कोई काम हो रहा है, जैसे आप कहीं रह रहे हो, आपको कोई चीज पसंद आ रही है, आप कहीं जा रहे हो या आप कुछ रीड कर रहे हो, ये सब एक्शंस हैं, ठीक है। किसी काम का होना या करना शो ये कर रहे हैं, ठीक है। इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगेन आपको समझा रही हूँ, आप इस चीज को कॉन्शियस होके सुने, ठीक है। और अपना माइंड अपना क्लियर रखेंगे आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं और उनमें कैसे वर्ब यूज होते हैं, तब जाके आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जो वर्ब यूज कर रहे हो वो वर्ब ये शो कर रहे होते हैं कि किसी चीज का होना, लाइक कोई एक्शन हो रहा है, लाइक यू आर ईटिंग समथिंग, तो वो जो ईट है आपका खाना, वो एक एक्शन हो रहा है। इफ यू आर प्लेइंग, इफ यू विल से दैट आई प्ले विद आमना, राइट, तो वो आपका जो प्ले वर्ड है वो वर्ब है और वो एक्शन है कि आप डेली उसके साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्शन वर्ब्स होते हैं और जब ये वर्ब्स किसी सेंटेंस में यूज हो रहे होते हैं तो ये आपको शो कर रहे होते हैं कि ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें अभी डेली रूटीन के जो वर्ब्स यूज हो रहे हैं तो वो आपको बता रहे होते हैं कि ये अभी ये एक्शन हो रहा है या ये काम जो है वो डेली होता रहता है। एग्जाम्पल नंबर 1, the children, now there is a blank, there is no word, right? Wait, look, now there is a blank, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है आइसक्रीम। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो ऊपर आपके पास बॉक्स है, आपने उस बॉक्स में देखना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा एक्शन है कि बच्चे जब आइसक्रीम देखते हैं तो उनका एक्शन क्या होता है, वो कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास 5 वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग्स भी आपको पता होंगे। अब बच्चे जब आइसक्रीम देखते हैं तो क्या होता है, फिट, नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ड फॉर इट। लिव, आइसक्रीम में रहते थोड़ी हैं, ठीक है। लाइक, यस, जब बच्चे आइसक्रीम देखते हैं तो आइसक्रीम को लाइक करते हैं, उन्हें पसंद होती है ना आइसक्रीम और उनका दिल करता है कि हम आइसक्रीम खाएं। सो द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। नाउ राइट लाइक, LIKE, लाइक, राइट। इस तरह से आपके पास बॉक्स होगा, उसमें वर्ड्स होंगे और आपने जो आपके पास नीचे ब्लैंक्स होंगी, उन ब्लैंक्स में आपने उन वर्ड्स को लिख देना है जो भी वो सेंटेंस के लिए सूटेबल वर्ड होगा। नाउ सेकेंड line and the sentence is these shoes. Now there's a blank, me as well. Now which action is perfect for this line? These shoes. Now let's select the word from the box. There is a word fit. Yes, these shoes fit me well, right? So write fit. जब आप मार्केट जाते हो, आप शू की शॉप पे जाते हैं, आप कोई भी शू पहन के चेक कर रहे होते हैं, ट्राई करते हैं, आप वही लेते हो ना जो आपके पाँव में सही फिट आता है, ठीक है। अपने साइज से बड़ा शू नहीं लेते हो और जो तंग होता है वो भी आप कहते हो कि नो मामा, इट्स अ लिटिल बिट टाइट, राइट। सो
these shoes fit me well. So it is an action, right? Fit here. Now this is your simple present tense, ठीक है? कि ये आप उन चीजों के बारे में बता रहे हो जो अभी डेली रूटीन में जो आपके एक्शंस हो रहे हैं, जो आपकी रूटीन वाइज जो लाइफ चल रही है उसमें जो चीजें हो रही हैं, आप उन चीजों का बता रहे हैं यहाँ पे. सो नंबर 3 इज वी. Now consider that there is a blank. Okay, we blank near the airport. अब आप ये देखें कि एयरपोर्ट के करीब पे आपका कौन सा एक्शन यहाँ पे सूट कर रहा है. फिट तो हो चुका. फिट के बाद कौन सा वर्ड है? लिव है. ठीक है, वी लिव नियर द एयरपोर्ट. ठीक है, वी गोज नियर द एयरपोर्ट, ये भी गलत हो जाएगा. वी रीड्स नियर द एयरपोर्ट. आप क्या एयरपोर्ट के करीब जाके या एयरपोर्ट पे जाके स्टडी करते हो? नो, स्टडी तो नहीं करते. लेकिन यस, आपका घर तो एयरपोर्ट के करीब हो सकता है. सो राइट, लिव. वी लिव नियर द एयरपोर्ट. हमने आई थिंक इंग्लिश के अभी सेकंड लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था या सोशल स्टडी में पढ़ा था आई गेस, कि आप जब किसी को अपना एड्रेस समझा रहे होते हैं. यस, वी हैव स्टडीड इन सोशल स्टडी, और वो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप किसी को अपना एड्रेस बता रहे होते हो तो आप ये बता सकते हो कि आपके घर के करीब कौन कौन सी जगह हैं. तो आप ये भी बता सकते हो अगर आपके घर के करीब एयरपोर्ट है, दैट आई लिव नियर द एयरपोर्ट, राइट. तो ये यहाँ पे भी आप उस चीज को भी याद करें तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी. दैट वी लिव नियर द एयरपोर्ट. नाउ लिव इज अ एक्शन, राइट. इट इज द एक्शन वर्ब. दैट आप वहां अपने, आपका घर है वहां पे और आप वहां पे रहते हैं. सो इट इज डन एज अ हैबिट. वहां पे आप रोज रह रहे हैं. सो इट इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. नंबर 4, मॉम. नाउ see the sentence. Okay, mom, then there is a blank. The newspaper in the evening. अब देखें कि आपकी जो मामा हैं वो न्यूज़पेपर को इवनिंग में क्या करती हैं न्यूज़पेपर के साथ? फिट? नो, फिट इज ऑलरेडी डन. लिव इज डन. लाइक इज डन. ओके, गोज. अब आपकी मामा जो है वो, अगर आप ये लिखते हैं कि मॉम गोज द न्यूज़पेपर इन द इवनिंग, दिस इज नॉट अ सेंटेंस. ये तो वर्ड यहाँ पे फिट ही नहीं हो रहा, सूट ही नहीं कर रहा. रीड्स. आपकी मामा क्या न्यूज़पेपर डेली शाम को रीड करती हैं? Yes, this is possible. This is a perfect word. My mom reads the newspaper in the evening. Sorry, it's reads. Reads the newspaper in the evening. Number 5 and the last one. I hope so that you all are not getting too much bored. I'm trying to finish it as soon as possible, and it is the last one. Then the class is going to end. But I always think, और मैं पर्सनली खुद भी जब छोटी थी तो मुझे इंग्लिश की क्लास बहुत अच्छी लगती थी और मज़ा आता था. तो आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश की क्लास में मज़ा आता होगा. ठीक है, बस आप अगर समझ लिया करें पहले तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बहुत जो है मज़ा आता है और इजी भी होती है. इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट और मुझे भी बहुत पसंद है. ठीक है, तो आपने भी सही इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, समझना है, और फिर मेरे साथ साथ जब आप सॉल्व करते हो क्लास में भी और ऐसे भी, तो फिर आपको मजा भी तभी आता है. नंबर 5, ताहा डैश टू वर्क बाय बस. ओके, ताहा जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तो वो बस पे जाता है. ठीक है, सॉरी, देयर इज अ ब्लैंक. ताहा ब्लैंक टू वर्क बाय बस. अब कौन सा एक्शन यहाँ हो रहा है? Taha fit to work by bus. Taha live to work by bus. No, wrong words. Taha like to work by bus. No. Taha goes to work by bus. Yes, goes is a perfect action verb. So it fits here well. तो आप इस blank में goes लिख ले. ठीक है,
जिन जिन वर्ड्स के नीचे ब्लैंक्स लगी हुई हैं वो आपके एक्शन वर्ब्स हैं। So it's done. Today's lecture is finished. आपने सारा काम अपनी नोटबुक्स के ऊपर करना है। रेगुलर वर्ब्स हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर अपना पेज प्रिपेयर करेंगे और वहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट 2 पेज आपके प्रिपेयर होंगे और काम बहुत नीट करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी सेम इसी तरह आपने डेफिनेशन ऊपर हेडिंग देनी है, देन उसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसी तरह आप बॉक्स बनाएंगे, उसमें आप 5 वर्ड्स लिखेंगे एंड देन उसके नीचे आपके पास एग्जांपल्स होंगी, तो आपने वो एग्जांपल्स भी लिख के ब्लैंक लगा के और उसके बीच में खुद से सॉल्व करेंगे आप, और खुद से ऊपर से वर्ड्स चूज करेंगे और खुद से वो आप वर्ड्स उसमें लिखेंगे। और उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसको याद भी करना होगा, और आपकी मामा को चाहिए कि वो आपका टेस्ट भी लें, ठीक है, और रिवीजन में हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे। So it is very easy.